मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में हो? ठीक है। देखो बच्चों, आज से हमारा फिर से सेम 2 का बाकी का अभ्यासक्रम शुरू हो जाने रहा है। पिछले हम पाठ 1 से 5 तक पढ़े थे। व्याकरण में विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द पढ़े थे और निबंध लेखन में मेरी पाठशाला और मेरा परिचय पढ़े थे। ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6, टपका का डर। ये कहानी पाठ में कहानी का है, जैसा कुछ है, आपको बड़े मज़ा आएगी। ठीक है। देखो, આ વાર્તામાં ગરીબી અને તકલીફ બંનેનો સામનો કરતી ડોશીને ઝૂંપડીની ટપકતી છત, એટલે ઝૂંપડીમાંથી પાણી ટપક્યા કરે છે ને એ વધારે તકલીફમાં મૂકી દે છે। તે મનમાં એટલી બધી ગુસ્સે થઈ જાય છે। વરસાદથી હેરાન થયેલી એક વાઘ ડોશીની ઝૂંપડી પાસે આવીને બેસી જાય છે। આનો અંદર વાઘ બી છે, देखो दिख रहा है आपको? ડોશીની વાતો સાંભળીને અજ્ઞાત ભયથી ગભરાઈને તે ભાગી જાય છે। એટલે વાઘ વિચાર્યા વગર જ એ ડોશીની વાતો સાંભળીને ભાગી જાય છે। તો આ પાઠની અંદર સરસ મજાની વાર્તા છે। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया को झोपड़ी का टपकता छप्पर यानी कि छत और भी संकट में डाल देता है। मैंने आपको बताया ना कि बरसात हो रही है, छत से पानी टपक रहा है और डोसी बेचारी बहुत झुंझला उठी, गुस्सा हो गई है कि इसका मैं क्या करूं। वह मन ही मन झुंझला रही है, गुस्सा થઈ ગઈ છે। મનથી મન આમ ગુસ્સો કરવો, આપણે કોઈ વસ્તુ ના ગમતી હોય તો આપણે કેવો ગુસ્સો આવે મનમાં, એવી રીતના ડોસીને પણ ગુસ્સો આવે છે। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। वरसादથી પરેશાન થઈ ગયો છે બાઘ, એ પણ એ बुढ़ियाની ઘરની બહાર આવીને બેસી ગયો છે। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। बुढ़िया મનમાં कुछ મોટેથી બોલતી હોય છે, એટલે વાઘ સાંભળી જાય છે તો શું કરે છે, એ પછી જતો રહે છે। बरसात का दिन था, वरसादनो दिवस હતો। चारों ओर पानी बरस रहा था, चारे बाजू पानी वरसी રહ્યું હતું। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था, जंगलनी अंदर डोसीનું घर ભીગ એટલે પલળી રહ્યું હતું। ભીગવું એટલે કે પલળવું। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा, અને એટલામાં જ ડોસીનું ઘર ટપકવા માંડ્યું પાણીથી। बुढ़िया परेशान हो उठी और डोसी तो हैरान थई गई, परेशान यानी हैरान। परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन, पण करे शू। छप्पर यानी छत, छतने सरखी क्या करे कोण। डोसी तो बिचारी एकदम दुबળી पतली છે, એનાથી તો કંઈ થાય નહીં, તો એ કરી આપે કોણ એને? અને જંગલમાં તો કોણ હોય? કોઈ ના હોય। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, थोड़ीक वाરમાં ઓલે એટલે કે કરા, વરસાદ પડે ને ત્યારે તમે જોજો કોઈક વાર બરફના કરા પણ પડે છે, મોટા મોટા, એને ઓલે કહેવાય। બેર બરાબર ઓલે એટલે કે બોર જેવડા કરા પડતા હતા। બેર यानी बोर। ओलों की मार से उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। અને આપણે જોજો તમે આવી રીતના મોટા કરા પડે ને ત્યારે વાગે આપણને। કોઈકવાર ટ્રાય કરજો, એકવાર બહાર નીકળીને આવી રીતના મોટા જ્યારે વરસાદના છાંટા પડે ને ત્યારે આપણી ઉપર વાગે તો આ બાઘને પણ શું થયું, એ કરાના મારથી હેરાન થઈ ગયો, એની પર પડ્યા તો એ પણ હેરાન થઈ ગયો। કૂદતે ફાંદતે વह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, એટલે હાફળો ફાફળો દોડતો એ ડોસીના ઘર પાસે પહોંચી ગયો।
बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। ડોશીમાં અંદર શું બનાવી રહ્યા હતા? ભાત, ચાવલ યાની ભાત. અંદર ભાત રાંધી રહ્યા હતા. ચૂલે પર પાણી ટપક રહ્યા था. ચૂલે પર એટલે કે જ્યાં ચૂલો એનો સળગતો હતો એની પર પાણી ટપકી રહ્યું હતું. वह झुंझला उठी और बोली, અને એકદમ गुस्से થઈ ગઈ અને બોલી, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं. એને એવું કીધું કે મને આ ટપકા, આ પાણીના ટપકાથી જેટલી બીક લાગે છે એટલી વાઘથી પણ બીક લાગતી નથી. बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है. વાઘે વિચાર્યું, ડોશી મારાથી તો નથી ડરતી પણ ટપકાથી તો ડરે જ છે. જરૂર ટપકા મુझसे भी बड़ा जानवर होगा. એટલે કે જરૂર ટપકું મારાથી પણ मोटू जानवर हसे, शक्तिशाली. बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया. અને એટલું વિચારતા જ વાઘ ગભરાઈ ગયો. સિર પર પેર રખના એટલે કે ખૂબ ઝડપથી ભાગી જવું. અને એ વાઘ ભાગી ગયો. ડોશીના ઘર આગળ ઊભો હતો અને વાતો સાંભળતો હતો ડોશીની, અને વાઘ પછી ભાગી ગયો. ડર, ટપકા કા ડર, તો આપણે કંઈ ડરીએ છે? વરસાદ પડે તો આપણે ડરીએ છે? તો આ તો વાઘ તો અજ્ઞાત હતો, એ તો ડરી ગયો અને આવી વાતો સાંભળી એને ડોશીની, તો વાઘ તો ભાગી જ ગયો. ठीक है बच्चों, अब हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे. देखो, पहला प्रश्न, तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर देखने को मिलते हैं? तो मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर देखने को मिलते हैं. तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तो मेरा घर मिट्टी, पत्थर, खपरेल, सीमेंट आदि से बना है. ठीक है. छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? छप्पर यानी छत, घास फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है. बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? तो बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं. ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? तो ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, कुछ लोग खाते हैं और उनसे खेलते भी हैं. ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत को और फसल को नुकसान होता है. तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो मैंने मिट्टी का, लोहा का और गैस का चूल्हा देखा है. जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? तो जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं. बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है? तो चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है. बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? दुम दबाई भागी गया ना. तो बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती मगर टपका से डरती हूँ. यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका जरूर कोई मुझसे बड़ा जानवर होगा. तो यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया. अब हम थोड़े दूसरे प्रश्नों की चर्चा करेंगे. बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बुढ़िया जंगल में रहती थी. बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? तो बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा. बाघ ओलों की मार से परेशान होकर कहाँ आ गया? तो बाघ ओलों की मार से परेशान होकर बुढ़िया के घर के पास आ गया. पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? तो पानी टपकने की आवाज़ थी टप टप. बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? तो बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था. बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया?
तो बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। देखो बच्चों, आज हम यहाँ तक का ही पढ़ेंगे, आगे का दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? और अच्छे से लिखना है CW की नोट में। सेम टू ने पीछे बाकी है ना आपका CW, वहीं से ही शुरू करना है, दूसरी नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाकी का CW है पहले वाला, वो भी आप ख़त्म कर देना। एग्ज़ाम आ रही है ना, कितनी एग्ज़ाम आ रही अभी? सेम टू में हमारा एकम कसौटी का पेपर भी गया हिंदी का, मालूम है ना आपको? ठीक है, जो कुछ समझ में ना आए तो मुझे फ़ोन करके पूछ लेना। ठीक है, ठीक है ना? थैंक यू।